First of all, I want to thank each one of you for having prayed for me during my surgery. मेरे सर्जरी के दौरान मेरे लिए दुआ करने के लिए मैं तहे दिल से पहले आप सबों को शुक्रिया अदा करना सोचता हूँ. And because of all your prayers, I am fit as a fiddle to minister unto you this evening. और आपकी दुआओं की वजह से आज शाम को मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ और खिदमत गुजारी में शामिल हूँ. The last time I visited this church was in the year 2022 on December 18th. आखिरी बार जब मैं यहाँ आया था वो था December 18, 2022. In March and April of this year, I was in the hospital और for most of the time. मार्च और अप्रैल इस साल को मार्च और अप्रैल में मैं अस्पताल में था, तकरीबन 2 महीने था. Thanks to the prayer of the churches, I was healed completely. और एक्लीसिया की दुआ का मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त बन चुका हूँ. So thank you once again. और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ. Before we meditate God's word, let's look to the Lord in prayer. और खुदा का कलाम मुताला करने से पहले हम खुदा से दुआ करेंगे. Our loving living heavenly Father, God of grace, mercy and peace, we once again thank you for this evening time when we could, Lord, hold your scriptures and learn precious things for our life, Lord. Once again, Lord, speak to us from the throne of grace so that it may be beneficial for us, Lord, and in thy process, thy holy name may be glorified. In Jesus' precious name we pray. Amen. Today we'll read one small portion from Luke chapter 5. आज के दिन हम लूका की खुशखबरी बाब नंबर 5 में से एक छोटा हिस्सा हम पढ़ेंगे. We'll read only verse 28. सिर्फ और सिर्फ 18वीं आयत हम पढ़ेंगे. And he left everything behind and got up and began to follow him. 28वीं वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिए. This was the response of Levi who to the words of Lord Jesus Christ, follow me, and this was his response. यहाँ लेवी को जब हमारे खुदावंद यीशु बुलाते हैं, मेरे पीछे हो ले करके बोलते हैं, तो उसका रद्द अमल है ये. Dear friend, this chapter 5 of the book of the Gospel according to Luke is a chapter where we see people leaving something behind to follow Jesus. अजीजों, इस किताब में लूका की खुशखबरी बाब नंबर 5 में इस बाब में हम लोगों को देखते हैं जिन्होंने कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को उन्होंने छोड़ दिया ताकि खुदावंद यीशु के पीछे होने के लिए. The fishermen left their nets, their boats, their family members, and they followed the Lord. यहाँ माहीगीर जो थे उन्होंने अपनी कश्तियाँ और अपने जाल, अपने घराने को छोड़कर उन्होंने खुदावंद के पीछे हो लिए. And the leper and the paralyzed person left behind their sins. और कोड़ी से जो मारा गया था उसने अपने गुनाहों को छोड़ दिया. The four people who carried the paralyzed person into the place where Jesus was. और मफलूज ने भी अपने गुनाहों को छोड़ दिया. और 4 लोग जिन्होंने मफलूज को उठाकर उस घर में ले गए जहां खुदावंद यीशु थे. They left their ego, they left their selfishness, they left their self-centeredness. उन्होंने अपनी खुदगर्जी, अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस, ये सब कुछ उन्होंने छोड़ दिए. And now in this portion that we have read, और अब इस हिस्से में जिसमें हमने पढ़ा है, we see a professional, income tax professional. यहाँ पे एक इनकम टैक्स प्रोफेशनल को महसूल लेने वाले को हम देखते हैं. He is named Levi. उसका नाम है लेवी. And he left behind the booth, और उसने अपना बूथ को छोड़ दिया. the money and his career. उसने अपना कैरियर को, पैसे को, सब कुछ उसने छोड़ दिया. The only probable thing that he must have taken along with himself is the pen that he used to record the transactions. शायद वो अपने पास एक ही चीज को लेकर यीशु के पीछे चला गया और वो चीज शायद कलम हो सकता है जिससे वो ट्रांजैक्शंस लिखता था. What is the important lesson that we can learn from this Luke 5? और यहाँ पे हम क्या देखते हैं लूका 5वां बाब में से? To follow Jesus, you have to leave something. खुदावंद यीशु के पीछे होने के लिए आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा. An apt question that we all should question ourselves: what did I leave behind to follow Jesus? तो हम सबों को ये सवाल पूछना पड़ेगा अपने आप से कि मैंने भी खुदावंद यीशु के पीछे होने के लिए, उसकी पैरवी करने के लिए मैंने भी क्या छोड़ा है. It is said in Luke 5:27, he was a tax collector. यहाँ लिखा हुआ है लूका की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 27 में लिखा हुआ है कि वो एक महसूल लेने वाला था. In those days, the tax collectors were supposed to be the richest people. उन दिनों में महसूल
लेने वालों को बहुत अमीर करके मानते थे। But when the call came from the Lord Jesus, लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ से बुलावा आया, he not only left his riches, उसने अपनी दौलत को ही नहीं छोड़ा, बल्कि he left the security of a job, उसने अपने एक काम जो है उस काम का सिक्योरिटी जो होता है उसको भी उसने छोड़ दिया। he left a very comfortable life. उसने उस कंफर्टेबल जिंदगी जो है, अमन अमान की जिंदगी जो है, उसे भी उसने छोड़ दिया। What did he get in the process when he was following Lord Jesus Christ? और इस तरीके से उन सब चीजों को छोड़कर हमारे खुदावंद यीशुआ के पीछे जाने के वक्त उसको क्या हासिल हुआ था, क्या मिला था? He had to do a lot of traveling along with Lord Jesus हमारे Christ. खुदावंद यीशुआ के साथ उसने बहुत दूर सफर करना पड़ा। He had to face many hardships और यीशुआ के साथ जाते जाते बहुत सारे तकलीफों को उठाना पड़ा, and eventual martyrdom for the sake of Christ. और आखिरकार हमारे खुदावंद यीशुआ के वास्ते उसे शहीद बनना पड़ा। He left his old life in exchange for a new life with Lord Jesus Christ. उसने अपनी पुरानी जिंदगी को उसने छोड़ दी ताकि हमारे खुदावंद यीशुआ में नई जिंदगी हासिल करे। When he started following Lord Jesus Christ, he got into a new group who followed the Lord. और हमारे खुदावंद यीशुआ के साथ जाते जाते एक नए गुरोह में उसने शामिल हो गया। He was now an accepted person और हमारे खुदावंद यीशुआ के पास मकबूल इंसान ठहरा, because tax collectors in those days were despised people. क्योंकि उन दिनों में महसूल लेने वालों को लोग तर्क करते थे। People used to shun these tax collectors. उन दिनों में महसूल लेने वालों को लोग खारिज कर देते थे, दूर करते थे। These tax collectors were very mean people. क्योंकि ये महसूल लेने वाले बहुत निकम्मे लोग बनते थे। They collected more than the admissible tax. क्योंकि उन दिनों में जो महसूल लेना था उससे ज्यादा वो लोग वसूल भी करते थे। They were great extortionists. और बहुत ज्यादा वसूल करने वाले होते थे। And this was the reason they faced the scorn of the people. इसीलिए लोग उनको झिड़कते थे, लोग उनसे नफरत करते थे। How do we know that the tax collectors collected more than the admissible tax? हमें पता कैसा चलता है कि उन दिनों में महसूल लेने वाले जो लेना है उससे ज्यादा वसूल करते थे? From the life of Zacchaeus. जक्कई की जिंदगी से। When tax collectors came to be baptized by John the Baptist, जब महसूल लेने वाले बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास बपतिस्मा के लिए आए, they said to John the Baptist, "Teacher, what shall we do?" तो उन्होंने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से उन्होंने पूछा कि ए उस्ताद हम क्या करें? John says in Luke chapter 3, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 3 में यूहन्ना फरमाता है, verses 12 and 13, और आयत नंबर 12 और 13, collect no more than you are authorized to do. उसने कहा जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लेना। So in all, these tax collectors were sinful people. तो मुकम्मल तौर पे हमने जाना कि ये लोग महसूल लेने वाले बहुत गुनहगार लोग होते थे। And any person fellowshipping with these tax collectors are also regarded as sinful people. और इस तरीके से जो महसूल लेने वालों के साथ रिफाकत रखते थे उन लोगों को भी गुनहगार में शामिल कर देते थे लोग। When Jesus was having dinner at Matthew's house, और जब खुदावंद यीशुआ मत्ती के घर में जाकर खाना खाने लगा, the Pharisees questioned the Lord, तब फरीसी लोग आकर खुदावंद यीशुआ से सवाल करने लगे, "Are you dining with the sinful people, these tax collectors?" क्या आप महसूल लेने वाले इंसान से यानी इस गुनहगार के साथ जाकर इसके साथ तो खाना खा सकता है? Are these the people of your choice, people who are downgraded people? क्या तुम्हारे हाथों में यही बरगुज़ीदे बने? क्या इन्हीं लोगों से जो निकम्मे लोग हैं इन्हीं के साथ तेरी रिफाकत है क्या? What did the Lord say to them? तब हमारे खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? It is not the healthy people who needs a doctor. तब यीशुआ ने कहा कि जो तंदुरुस्त हैं उनको तबीब की जरूरत नहीं है। I have come not to call the righteous but sinners. उन्होंने कहा कि मैं रास्तबाजों को बुलाने के लिए नहीं आया बल्कि गुनहगारों को बुलाने के लिए आया है। I come to save the sinners. और मैं गुनहगारों को नजात देने के लिए आया हूँ। This is what the Lord said when the Pharisees questioned him. जब फरीसी लोग यीशुआ से सवाल किया तब खुदावंद यीशुआ ने उनको यही जवाब दिया था। But when Matthew or Levi they followed Lord Jesus Christ, लेकिन जब मत्ती और लेवी ने हमारे खुदावंद यीशुआ के पीछे चले, he got a new lease of life. तो उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव आया। He got into the company of the disciples. और यीशुआ के शागिर्दों में वो लोग शुमार किए गए। When he was following along with the Lord Jesus Christ, people respected him. और जब लेवी यीशुआ की पैरवी करते हुए
चलने लगे तो लोग उसकी इज्जत करने लगे। He got to see so many miracles. और लेवी बहुत सारे मुआजिजे देखने लगा। Overnight, everything changed for the Matthew. रातों रात मत्ती की जिंदगी में सब कुछ बदल गई। So the first thing that we observe from his life is he got a new life. तो पहली बात उसकी जिंदगी में हम ये देखते हैं कि उसे एक नई जिंदगी मिली। When we follow Lord Jesus Christ, जब हम हमारे खुदावंद यीशुआ की पैरवी करते the हैं, day when we are born again, our sins have been forgiven. यानी उस दिन जब हमने फैसला किया, हमारे गुनाहों को इकरार किया, हमारे गुनाह यीशुआ के खून में धो लिए गए, Our old life is gone. हमारी पुरानी जिंदगी चली We गई, got a new life. हमें एक नई जिंदगी मिली है। That's why we know this very familiar verse. इसीलिए हम सबों को वो मशहूर आयत याद है ना, If anyone is found in Christ, he is a new creature. Behold, all things become new. Old things are passed away. कि जो कोई यीशुआ में आया है वो एक खुदा के सामने एक नया मखलूक बना है, पुरानी चीजें जाती रही, सब कुछ नया बन गया है। So this income tax professional became a disciple. तो ये इनकम टैक्स प्रोफेशनल जो है वो खुदावंद यीशुआ का शागिर्द बन गया। He got a new respect. उसकी जिंदगी में एक नई इज्जत मिली उसे। Secondly, dear friends, दूसरी बात है अजीजों, he must have been a very wealthy man शायद वो बहुत अमीर इंसान होता, because he was working for the Roman government. क्योंकि वो रोमी गवर्नमेंट के लिए, सल्तनत के लिए वो काम करता था। He used to collect the taxes and record it in registers. और वो क्या करता था, वो महसूल वसूल करता था और रिकॉर्ड में वो रजिस्टर में लिखता था। As I said earlier, the only thing he must have taken from his booth is the pen. शायद जैसे मैंने कहा था, शायद वो अपने बूथ से यानी अपने मेज में से शायद वो एक कलम ही उठाकर ले गया होगा यीशुआ की पैरवी करने। Previously used to write all the transactions in a register. इससे पहले तो वो क्या करता था, सारा महसूल जो वो वसूल करता था वो ट्रांसैक्शंस पूरा वो रजिस्टर में लिखने के लिए कलम इस्तेमाल करता था। But since the day he was following Lord Jesus Christ, लेकिन जिस दिन वो यीशुआ की पैरवी करने के लिए मंसूबा बांधा, he not only observed Lord Jesus Christ from close quarters, उसने हमारे खुदावंद यीशुआ को बहुत नजदीकी से यीशुआ पर निगाह की, बल्कि he used to record all those things. बल्कि जो भी यीशुआ करते थे सब कुछ वो लिखते जाता था। Today we are fortunate to have a book called the Gospel according to Matthew. इसीलिए खुदा का शुक्र है आज हमारे दरमियान हमारे हाथों में मत्ती की खुशखबरी करके ये किताब भी मौजूद है। Because he was a disciple of Lord Jesus Christ, क्योंकि वो हमारे खुदावंद यीशुआ का शागिर्द बना, he presents the life of Jesus to us. वो हमारे खुदावंद यीशुआ की जिंदगी हमारे सामने वो पेश करता है। He could picturize the life of Jesus Christ and put it to posterity. हमारे खुदावंद यीशुआ की जिंदगी का नक्शा बनाता है और आने वाले नस्लों के सामने वो लगा देता है। Today we enjoy that gospel. आज हम इस खुशखबरी को पढ़कर शादमान होते हैं। That is one aspect of his life. उसकी जिंदगी का ये एक पहलू है। But verse 29 of Luke 5 says, लेकिन लूका की खुशखबरी बाब नंबर 5 का आयत नंबर 29 में हम पढ़ते हैं 29 में, and Levi gave a big reception for him in the house, and there were great crowd of tax collectors and other people who were reclining at the table with him. फिर लेवी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफत की और महसूल लेने वालों और औरों का जो उनके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था। The most important thing for Matthew is to present the life of Lord Jesus Christ, his master, to his colleagues. लेवी की जिंदगी में एक अहम हिस्सा या एक अहम काम ये भी है कि उसके खुदावंद यीशुआ की जिंदगी को या यीशुआ की हस्ती को अपने कोलीग्स के सामने, हम खादिमों के सामने पेश करना। Without wasting much time, he organized a big reception for Jesus. ज्यादा वक्त जाये ना करते हुए उन्होंने हमारे खुदावंद यीशुआ के वास्ते बड़ी ज़ियाफत की। He has hosted a large party. एक लंच पार्टी उन्होंने बनाया था। Number one thing is, by organizing a party, he was thankful for the Lord Jesus Christ who changed his life. By organizing a party? By organizing a party, first of all, he was thankful to Lord Jesus Christ for changing his life. इस तरीके से उसने पहला इस पार्टी को देने से उसने पहला ये जाहिर किया कि
खुदावंद यीशुआ जो उसकी जिंदगी में बदलाव लाया है उसकी शुक्रगुजारी मैं करता हूँ। He was honoring the person who gave him a new lease of life. एक नई जिंदगी जिसने उसे बख्शा है उस खुदावंद की इज्जत वो कर रहा है। I may call it as a born again party. मैं कहता हूँ इसको मैं बॉर्न अगेन पार्टी करके एक नाम देता हूँ। And secondly, by organizing a party, he wanted to present Lord Jesus Christ to his people. और दूसरी बात यह है कि एक पार्टी देने से अपने खुदावंद यीशुआ को उन लोगों के सामने उसने पेश किया। Once verse 29 says it was a big reception. और वर्स 29 में हम पढ़ते हैं कि वो बड़ी ज़ियाफत थी। It means there was a big crowd. इसका मतलब ये है कि वहाँ बहुत बड़ा लोगों का झुंड बन गया था। Dear friends, there is a one practical principle that I just want to tell you. अजीजों, मैं एक प्रैक्टिकल प्रिंसिपल उसूल कहना चाहता हूँ। A saved man doesn't want to go to heaven alone. एक नजात याफ्ता मोमिन कभी भी अकेला रहना पसंद नहीं करता। He will not keep the blessing to himself. वो कभी भी अपनी बरकत अपने लिए वो नहीं रख लेता। It's always his desire to pass on the blessing to others. हमेशा उसकी चाहत ये रहती है कि ये बरकत दूसरों तक वो पहुंचाए। We are all saved people. हम सब नजात याफ्ते लोग हैं। We are all born again people. हम सब नए सिरे से पैदा हुए लोग हैं। There is definitely an assurance that we'll all go to heaven. हमारे दिल में यकीन दहानी है कि हम जरूर आसमानी बादशाहत में शामिल हो जाएंगे। How many people are you carrying with yourself? आप अपने साथ कितने लोगों को शामिल करके ले जा रहे हैं? Are you sure that your family members are with you when you go to heaven? क्या आपके दिल में ये यकीन दहानी है कि आपके साथ आपके घराने के लोग भी आपके साथ खुदा की उस सल्तनत में शामिल रहेंगे? Do you have this confidence that my wife goes along with me, my husband goes along with me, my children go along with me? क्या आपके दिल में ये दिलेरी है कि या क्या आपके दिल में ये यकीन दहानी है कि मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी, मेरे बच्चे मेरे साथ आएंगे या मेरा शौहर मेरे साथ रहेगा? So Matthew got a new purpose in life. तो मत्ती को जिंदगी में एक जिंदगी जीने के लिए एक नया मकसद मिला है। Not only got a new life, he got a new purpose. नई जिंदगी मिली, उसके साथ में उस जिंदगी को बिताने के लिए एक मकसद भी मिला। There is one interesting verse which Matthew himself records in chapter 15 and verse 13 and 52. एक अजीब आयत है मत्ती की खुशखबरी में, वो खुद लिखता है 15वां बाब और आयत नंबर 52. 52 And Jesus said to them, therefore every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like the head of a household, number 1, who brings out his treasures, new things and old. 13:52 उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकीर जो आसमान की बादशाही का शागिर्द बना है उस घर के मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। So a disciple is he's compared to the head of a household who brings treasures, new things and old. और यहाँ एक शागिर्द किस तरह का इंसान बनता है? वो एक घर के मालिक जैसा बनता है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। What is the meaning of this verse? इस आयत का मतलब क्या है? It gives out the purpose of our Christian life. हमारी यीशुई जिंदगी का मकसद यहाँ बताया गया है। Why did the Lord save us? हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमें क्यों बचाया? Number 1, we are all students learning. पहली बात यह है कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, सीखने वाले तालिब हैं। Secondly, we are disciples living out the life of our Lord. और दूसरी बात, हम सब शागिर्द हैं जो हमारे खुदावंद की जिंदगी हमारी जिंदगी में हम जी रहे हैं। And thirdly, we are householders. और तीसरी बात, हम घर के मालिक भी हैं। We are sharing the treasures with the treasure we have with others. और जो खजाना हमारे पास है उस खजाने को हम दूसरों के सामने बांटते हैं। So we are students, we are disciples, we are householders. तो हम तालिब हैं और हम घर वाले हैं और हम शागिर्द भी हैं। Dear friends, this is a very genuine life-changing experience for Matthew. अजीजों, ये तो मत्ती की जिंदगी में उसकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाने वाला एक वाकया है। The moment he was born again or became a disciple of Lord Jesus Christ, it was his desire that
everyone should become disciples. जिस वक्त वो नए सिरे से पैदा हुआ या हमारे खुदावंद यीशुआ का शागिर्द बना तो उसको ये सारी हासिल हुई है। So he got a new purpose in life. उसकी जिंदगी में जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिला। That's what we have in Lord Jesus Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ में हमें यही हासिल होता है। Before we were born again, we were aimless. नए सिरे से पैदा होने से पहले हमारे सामने कोई मंजिल भी नहीं थी, No goals. कोई भी मंजिल नहीं था। We were living our life just like that. हमारी जिंदगी ऐसे ही हम यूं ही बिताते रहे थे। But we have a new purpose in Lord Jesus Christ. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ में एक नया मकसद हमें मिल गया है। I'll tell you 4 things regarding life. जिंदगी को लेकर मैं 4 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। There is a purpose in life. Life has a purpose. जिंदगी को एक मकसद जरूर रहता है, That you find it. उस मकसद को आप जानो। The number 1 purpose is to find the true and the living God. पहला मकसद ये है, पहली चीज ये है कि सच्चे खुदा को पहचानना चाहिए। Find the God who loves you the most. तुझे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाला उस हकीकी खुदा को तू पहचान। Find out the God who gives you salvation. जो हकीकी खुदा तुझे नजात बख्शता है उसे पहचान। So life has a purpose, number 1. तो पहली बात यह है कि जिंदगी को एक मकसद है। And then secondly, when we come to Lord Jesus Christ, we have a plan. God gives you a plan. और दूसरी बात यह है कि जब हम हमारे खुदावंद यीशुआ के पास आते हैं तो खुदावंद यीशुआ के पास एक मंसूबा है। Unfold that plan. उस मंसूबे को तू जान। Ask the Lord, what is the plan that you have for me, for saving me? और खुदावंद यीशुआ से पूछ और जान और उनसे कहो कि ऐ खुदावंद यीशुआ, मुझे नजात याफ्ता बनाने के पीछे आपका मकसद या मंसूबा क्या है। And thirdly, life has a pleasure. और तीसरी बात यह है कि जिंदगी में खुशी भी है। This is the essence of Ecclesiastes. वाइस की किताब जो है उसका एसेंस यही है। And finally, life is a present gifted to God. और आखिरकार जिंदगी एक तोहफा है और उस तोहफे को खुदा को सौंप। So according to for this person Matthew, he got a new life, he got a new purpose. इस तरीके से मत्ती जो है उसकी ज़िंदगी में उसे एक नई ज़िंदगी मिली, उसके साथ एक नया मंसूबा, एक नया मकसद भी मिले। And thirdly, he got a new name. और तीसरी बात यह है कि उसे एक नया नाम मिला। In this Luke chapter 5, he is known by Levi. लूका की खुशखबरी बाब नंबर 5 में हम पढ़ते हैं उसका नाम यहाँ लेवी है। And in my Bible, English Bible, it says call of Levi, in the brackets it is named Matthew. और यहाँ अंग्रेजी में बाइबल में भी लिखा हुआ है कि लेवी और बगल में मत्ती करके लिखा हुआ है। Probably Matthew was the name given to him after he was followed Lord Jesus Christ. शायद हमारे खुदावंद यीशुआ के पीछे होने के बाद उसको मत्ती नाम दिया गया है। Matthew means gift of God. मत्ती का मतलब होता है खुदा की बख्शिश। Matthew is the only one of the gospel writers whose name was changed. मत्ती कौन है? मत्ती एक खुशखबरी लिखने वाला है जिसका नाम बदल दिया गया था। The gospel is written to us after his changed name. उसका नाम बदलने के बाद उसने हमारे वास्ते वो खुशखबरी लिखी थी। Levi means joined. लेवी का मतलब है जुड़ जाना। And Matthew means gift of Yahweh. और मत्ती का मतलब ये होता है यहोवा की बख्शिश। That means one of the persons who was who was involved in the mundane earthly things. और जो इंसान जो इस जमीनी बातों में कार्रवाई में मशगूल था, now gets himself associated with the heavenly things. अब आसमानी बातों में आसमानी काम में मशगूल बनता है। Dear friends, every life is a gift from God. अजीजों, हर एक जिंदगी खुदा से दिया गया तोहफा है। This is Ecclesiastes chapter 3 and verse 13. वाइस की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 11 में ये पढ़ते हैं। Whatever gift we get from God, we have to gift it again to God. जो भी तोहफा खुदा से हमें मिलता है उसे वापस खुदा को सौंपना पड़ता है। That is the message that we get from this passage. इस पैसेज में से हमें यही पैगाम मिलता है। What is the thing that we can give as a gift to God? खुदा को फिर से हम क्या तोहफे में दे सकते हैं? The word gift means G-I-F-T. अंग्रेजी में गिफ्ट का मतलब है GIFT। And when we see the acronym for this gift, और इस गिफ्ट का एक्रोनिम जब हम देखते हैं मुख्तसरन, we can learn some lessons for us. उसमें से हम कुछ सबक सीख सकते हैं। In Hebrews chapter 11 verse 28, 12-28, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 12 और वर्स 28 में, let us show gratitude
लिखा हुआ है कि हम शुक्रगुजारी अदा करें that we may offer unto God ताकि हम खुदा के सामने आकर नजर चढ़ाएं, an acceptable sacrifice with reverence and awe. खुदा के सामने आकर मकबूल होने वाली कुर्बानी को हम चढ़ा सकें। The word, important word there is, we must show gratitude. वहाँ बहुत अहमियत रखने वाला लफ्ज़ ये है कि हमें शुक्रगुजारी So we अदा have करनी पड़ती है। So we have an answer for G, it's gratitude. तो जी का मतलब है ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी। When we are born again, जब हम नए सिरे से पैदा होते we हैं, all must feel gratitude for the new life that He has given to उस us. नई जिंदगी जो खुदा ने हमें बख्शी है उसको लेकर हमें खुदा के सामने शुक्रगुजारी अदा करनी पड़ती है। Gratefulness should be the uppermost thing in our life. हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी जो होती है वही अव्वल दर्जे में हमें रखना चाहिए। Ungratefulness leads to ungodliness. अगर हम शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो हम खुदा से दूर हो जाएंगे। Wherever there is ingratitude, और जहां भी हम खुदा को शुक्रगुजारी अदा नहीं करते, there is always bitterness. वहां क्या होता है? कड़वाहट पैदा होता है। There is always dissatisfaction. वहां हमेशा डिससैटिस्फैक्शन या खुशी से मरहूम होना रहता है। So the first letter of gift is G and it is gratitude. और पहला लफ्ज ये है जी, उसका मतलब है ग्रैटिट्यूड। And the second letter in gift is I, और गिफ्ट में दूसरा लफ्ज है आई, indebtedness. मतलब मखरूज बनना। We are a debtor to others. हम दूसरों के निस्बत मखरूज हैं। That's what Paul says. पौलुस रसूल ने ऐसा ही कहा था। Romans 1:14. रोमियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 14। Brother can read. I am a debtor both to the Greek, the barbarians, the wise and unwise. रोमियों की किताब 1 का 14। 14. हाँ, 1 का 14 वहाँ लिखा हुआ है, मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानवों और नादानों का कर्जदार हूँ। We have a debt to the unbelieving world. हम जो दुनिया जो नजात याफ्ता नहीं है, उस दुनिया की निस्बत हम मकरूज या कर्जदार हैं। When we share the gospel with others, जब हम दूसरों के पास जाकर खुशखबरी बताते हैं, we are partially repaying some of the debt. हम थोड़ा सा कर्ज अदा कर रहे हैं। That's why the last command of our Lord Jesus Christ is our first concern. इसीलिए हमारे खुदावंद यीशुआ का आखिरी हुक्म जो है वो हमारी जिंदगी में पहली बात हो जाती है। That is found in Matthew 28:19 in this very gospel. मत्ती की खुशखबरी आखिर में हम उस बात को पढ़ते हैं। So gratitude and indebtedness. इसी तरह से हमें शुक्रगुजारी अदा करना चाहिए और हम कर्जदार हैं या मकरूज हैं करके याद रखना चाहिए। The third word in the word gift is F. और गिफ्ट में तीसरा लफ्ज है यफ, Faithfulness. इसका मतलब है दियानतदारी। All after having followed Lord Jesus Christ, becoming a disciple of Lord Jesus Christ, Matthew himself has been found faithful till the very end of his life. हमारे खुदावंद यीशुआ की पैरवी करने के बाद आखिर तक उसने मत्ती ने दियानतदारी दिखाई। It is one of the characteristics that God looks in us. हमारे जिंदगियों में खुदावंद इसको देखना चाहता है। That's why Matthew in one of his passages 25-21 he says, well done my good and faithful servant. That's a parable. इसीलिए हम पढ़ते हैं मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 25 वर्स 21 में, वहाँ एक तमसील में वहाँ मालिक कहता है कि अच्छे और दियानतदार नौकर, शाबाश। Faithful to the very end of our life. हमारी जिंदगी के इख्तिताम तक हमें दियानतदार बनना रहना चाहिए। How can we remain faithful? हम दियानतदार बनकर कैसे रहेंगे? No compromises. हाँ, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। Good example is that of Daniel. इसके लिए एक बहुत अच्छा मिसाल है दानियेल। How can we live a life of faithfulness? दियानतदारी की जिंदगी हम कैसे गुजार सकेंगे? Consistent life all through, in spite of the bad and the good that we face. हमारी जिंदगी में जो अच्छाई या बुराई जो भी आए, हमें खुदा के पीछे हमेशा लगे रहना चाहिए। The best example is that of Joseph. इसके लिए और एक अच्छा मिसाल है योसेफ। What is the faithful life?
What is that life of faithfulness? दीनतदारी की जिंदगी का मतलब क्या है? When God can rely upon us. इसका मतलब ये है कि जब खुदा हम पर तकिया कर सकता है, वो है दीनतदारी जिंदगी। About Caleb, it is written 6 times that he wholly followed me. कालेब के बारे में 6 बार ऐसा लिखा गया है कि वो तहे दिल से मेरा पीछा हो गया। He wholly followed God. वो तहे दिल से खुदा का पीछा कर दिया। And finally, a life of faithfulness is the complete trust that we have in our God. और आखिरकार दीनतदारी की जिंदगी का मतलब है हमारे खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना। O king, we are not careful to answer you. O king, we are not careful. Shadrach, Meshach and Abednego, they say to King Nebuchadnezzar, we are not careful to answer you. शद्रक मेशक अबेदनेगो ने बादशाह नेबुकदनेस्सर से कहा था कि ए बादशाह, हम तेरे जवाब देने का फिक्र नहीं करते हैं। Whether we live or die, हम जिए या मरें, we are not going to bow down to the image. हम इस बुत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। A life of faithfulness is a costly life. दीनतदारी की जिंदगी जो होती है वो बहुत कीमती जिंदगी होती है। And what is the reward of faithfulness? और दीनतदारी के लिए खुदा क्या रिवॉर्ड देता है? The word of God says, I'll give you a crown of life. खुदा का कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। This is the greatness of the disciple of Lord Jesus Christ, that is Matthew. ये है हमारे खुदावंद यीशुआ के एक शागिर्द मत्ती जो है उसकी खासियत। He got a new life. उसको एक नई जिंदगी मिली। Secondly, he got a new purpose in life. दूसरी बात यह है कि उसकी जिंदगी में एक नया मकसद मिला। And thirdly, he got a new name. और तीसरी बात यह है कि उसे एक नया नाम मिला। Dear friends, that's the same thing that we also experience. अजीजों, हमारी जिंदगी में भी हमने भी इन्हीं बातों का तजुर्बा किया है। We got a new life. हमें एक नई जिंदगी मिली है। The new purpose is to spread the gospel, be faithful witness. और एक नया मकसद यह है कि दुनिया में खुदा की खुशखबरी की मनादी करो और शाहिद बनो, गवाह बनो। And we have got a new name. और एक नया नाम भी हमें मिला है। He is a disciple of Lord Jesus और वो Christ. नाम ये है कि ये शख्स जो है ये खुदावंद यीशुआ का शागिर्द है। Dear friend, as we conclude this passage, this meditation, अजीजों, अब हम इस मेडिटेशन को खत्म करने वाले हैं। let's make an retrospection of our life. हम अपनी जिंदगी को एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे। We are living in a days that reflects the days of Noah. हम किस तरह के अयाम में जिंदगी गुजार रहे हैं? नोवाह के दिनों के जैसे हैं आजकल हमारे दिन। The great teacher Warren Wisby, who is now with the Lord, says, वारन ह्यूसबी जो खुदावंद के पास है, वो अजीम टीचर ये कहा था, man is inwardly corrupt, इंसान अंदर से वो खराब है, outwardly very violent, और बाहर से वो बहुत जालिम है, and upward very rebellious. और ऊपर से वो बहुत सरकशी करने वाला है, और खुदा का खिलाफ, rebellious. खुदा के खिलाफ सरकशी करने वाला है। And the earth is earmarked for destruction. और जमीन तो ये हलाक होने वाला, तबाह होने वाली है। And the Bible says in Amos 4:12, और आमोस 4 के 12 में बाइबल कहती है, prepare to meet thy God. तेरे खुदा से मिलने के लिए तू तैयार हो जा। In the same chapter, that is Amos chapter 4, और आमोस की किताब बाब नंबर 4 में God says not once but nearly 5 times, और यहाँ खुदा एक बार नहीं बल्कि 5 बार कहता है, you have not returned to me, you have not returned to me. वो कहता है कि तुम मेरे पास वापस नहीं आए। In fact, the title of the chapter itself is earmarked as you are not returned to me. यह टाइटल ही ये है कि तुम मेरे पास लौटकर नहीं आए। Dear friends, probably our Lord is inviting you for this last time. शायद अजीजों, खुदावंद हमारे खुदा आपको
मद्दू कर रहा है आखिरी बार। What is this invitation? ये दावत क्या है? You come to my fold. वो कहता है कि तू मेरे गले में आ जा, You become my disciple. तू मेरा शागिर्द बन जा। I will give you a new life. वो कहता है मैं तुझे नई जिंदगी बख्शूंगा, I'll give you a new purpose. मैं तुझे एक नया मंसूबा दूंगा, I'll give you a new name. ये एक नया नाम दूंगा। He wants you very dearly. वो चाहता है अपने आप के पास, आप अपने पास रहना वो पसंद करता है। Accept his loving invitation उसके प्यार भरी दावत को आप मकबूल बनाइए and be a part of this blessed Christian life. और ये अजीम मुबारक यीशुई जिंदगी में आप भी एक हिस्सा बन जाइए। If you accept his invitation, अगर आप उसकी दावत को कबूल करते हैं, you will live through eternity with that blessed God. और तो आप अब्दियत में उस मुबारक खुदा के साथ आप जिएंगे। What a blessed life Matthew lived. मत्ती कितनी बड़ी अजीम मुबारक जिंदगी बिताई है ना। Had he continued in his job, in that secure job, अगर वो सिक्योर जॉब में काम में पेशे में लगे रहता, no one would have remembered him. तो उसे कोई याद भी नहीं करते होंगे। He got some status only because he followed Lord Jesus Christ. उसको एक दर्जा मिला क्योंकि उसने हमारे खुदावंद यीशुआ को जाना और उसकी पैरवी की। What is the dignity that we all have? आज हमारे सामने भी डिग्निटी क्या है? We are the children of the Most High God. हम अजीम बुलंद खुदा के हकीकी खुदा के फर्जंद हैं। And what is our duty? और हमारा काम या फर्ज क्या है? Even as he is holy, we must also be holy. जैसा वो पाक है, हमें भी यहाँ पाक रहना चाहिए। And what is our destination? और हमारी मंजिल क्या है? The beautiful place called heaven. वो खूबसूरत जगह जिसे आसमानी बादशाहत कहते हैं। In the fellowship of the Most High God. उस अजीम खुदा की रिफाकत में रहना। Not for a few centuries, कुछ सदियों के लिए नहीं, but it's for eternity. लेकिन अब्दियत के लिए अज़ल तक। May God enable us to experience that life which was given to Matthew. मत्ती को जो जिंदगी खुदावंद यीशुआ ने बख्शी थी, उस जिंदगी में हमें भी शुमार होकर शामिल होने का मौका खुदा हम पर भी अता करे। May God bless this word. खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत बख्शे।